Good morning, students. Today we are revise chapter number 2 of Fundamental of Machine Design. This chapter is Moment of Inertia of Planar Cross Section. Okay, when we see the syllabus of this chapter, the first one is the derivation of equation of moment of inertia of standard lamina using first principle, parallel and perpendicular axis theorem, and polar moment of inertia. Okay, so let's start. What is the definition of moment of inertia? So moment of inertia, it is a product of elementary area of the surface and the square of distance of the elementary area from the axis. Means अगर मैंने ये डेल्टा ए एक एरिया लिया और ये एरिया का डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम एक्स एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस है और फ्रॉम वाई वाई एक्सिस से एक्स एक्स डिस्टेंस है और डी इज द इसका एरिया हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस मतलब इट इज द सम ऑफ summation of a into y square or a into x square. So moment of inertia about x axis is summation of a y square and moment of inertia about y axis is equal to summation of a x square. So when we are consider this whole system into n number of division particles, then summation of all the moment of inertia about the x-axis axis is equal to a1 square, a1 into y1 square plus a2 into y2 square plus so on, and moment of inertia at y-y axis is equal to a1 x1 square plus a2 x2 square plus so on. Okay, so second is the perpendicular and parallel axis theorem. So let us consider three axis theorem. Means the system is divided into x, y and z axis. Let us consider a small area whose area is dA, which is apart from x-axis through a distance x and y-axis through a distance y, and r is the resultant of x and y. ठीक है, तो according to Pythagoras theorem, r square is equal to x square plus y square. So perpendicular axis theorem says that if a moment of inertia of x axis and moment of inertia of y axis are the moment of inertia of the plane lamina about two mutually perpendicular axes in a plane of lamina, then moment of inertia of the plane lamina about axis zz perpendicular to the plane of lamina and passes through the interaction of x and y axis is given by क्या होगा, तो I z is equal to moment of inertia of x plus moment of inertia of y. Let us solve this. So जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिक प्रिंसिपल ही ले रहे हैं कि आई जेड जेड इज इक्वल टू सेम जैसे पहले हमने लिया था एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लेंगे आर स्क्वायर इंटू डी. अच्छा आर क्या है, तो इट इज अ समेशन ऑफ एक्स एंड वाई. सो आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी है. अब ये x और ये जो y है ये कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी ए प्लस वाई स्क्वायर डी ए. अच्छा एक्स स्क्वायर डी ए is nothing but it is the moment of inertia of y axis, and y square dA is the moment of inertia at x axis. So in this way we are conclude that the moment of inertia at z axis is it is the sum of moment of inertia of x axis and the moment of inertia of y axis. Similarly, polar moment of inertia. So polar moment of inertia, polar moment of inertia is the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane of lamina. Means IP is equal to होगा IZZ or it is equal to IXX plus IYY. क्लियर है? तो ये जो थ्योरम हुआ ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम.
अब देन सेकंड आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में फिर से सेम फंडा है। यहाँ पे जी जी जो है वो एक सेंट्रॉइड है, देन एक्स ये जो ए है ये हमारा एक्सिस है। तो ये जो एक्सिस है ये सेंट्रॉइड से h डिस्टेंस पे है, और सेंट्रॉइड से जो हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है जिसका एरिया डी ए है वो y डिस्टेंस पे है। So, according to parallel axis theorem, the moment of inertia of the plane lamina about an axis AA is equal to sum of moment of inertia of plane axis about parallel axis passing through centroid and the product of area of plane lamina with the square of distance between two axes. Clear है? मतलब आई ए क्या होगा, तो ये होगा सेंट्रॉइड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके प्लस एरिया इनटू यहाँ से सेंट्रॉइड के एक्सिस का जो डिस्टेंस उसका उसका स्क्वायर के समीशन के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस जो होगा इट इज द सम ऑफ, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ moment of inertia about centroid plus product of area into the square of distance between two axes। याद रहेगा? चलिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक जो फॉर्मूला है वही सिंपल है कि आई ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो आई ए अगर मैंने ए एक्सिस का डी ए से माना तो इट इज एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि h प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए अगर मैं h प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी ए किया और मैंने a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी ए। अब मैं डी ए को सब में मल्टीप्लाई करता हूँ और डिफरेंस मतलब इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये हो गया h स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए प्लस 2h ब्रैकेट में y इंटू डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब वाई स्क्वायर इंटू डी ए ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये सेंट्रॉइड डिस्टेंस है, मतलब आईजीजी है, तो एच स्क्वायर इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हुआ, तो मैंने ए ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट अभी नहीं हो रहा है, तो आई ए इज इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर ए प्लस 2h इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए प्लस आई जी जी। ओके, अब इसमें जो है 2h इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है इसलिए इसको जीरो कंसिडर किया गया, तो फॉर्मूला बना आई ए इज इक्वल टू आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया कि इट इज अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर? चलिए अब उसके बाद इसने कुछ डेरिवेटिव्स दिए हैं जो हमने सर्किल मतलब रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर, जो डिफरेंट डिफरेंट साइज हम पढ़ते हैं उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का उसने तरीका बताया। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब ऑब्जर्व करिए कि इसने बी विड्थ लिया है, अच्छा एच हाइट लिया है, और एच हाइट लेने के बाद इसने एक स्मॉल सा कंसिडरेशन किया, तो इसका एरिया डी ए हुआ और जो डिस्टेंस है वो डी वाई हुआ जो एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। ओके, सो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस एच बाई टू से माइनस एच बाई टू ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब वाई स्क्वायर इंटू डी ए की जगह पे मैंने क्या लिखा, बी इंटू डी वाई। ये देखिए बी मतलब एरिया जो होगा वो बी होगा इंटू डी वाई होगा, तो बी इंटू डी वाई। अब मैंने ये इंटीग्रेशन को ओपन कर दिया, जैसे ही ओपन किया तो ये मतलब y का क्या हो जाएगा, तो y क्यूब बाय 3 हो जाएगा, तो y क्यूब बाय 3 पे मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया तो उससे आई एक्स एक्स क्या आया, तो आया बी एच क्यूब बाय 12। ठीक है, सिमिलरली वाई वाई एक्सिस क्या होगा, तो इसका अपोजिट वाला पार्ट होगा बी एच क्यूब की जगह एच बी क्यूब बाय 12। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। चलिए तो इसी तरीके से जेड जेड एक्सिस क्या होगा, तो इट इज द सम ऑफ एक्स एक्स एक्सिस प्लस वाई वाई एक्सिस, तो बी एच क्यूब बाय 12 प्लस एच बी क्यूब बाय 12, तो बी एच बाय 12 को कॉमन कर दिया तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
क्रॉस मतलब सर्कुलर सेक्शन का निकालना है। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए उसने जेड एक्सिस का यूज किया। आई जेड जेड जो है वो 0 से d/2 तक आएगा, आर स्क्वायर इंटू डी है। ओके, अब डी ए की जगह उसने फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, देख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 2 पाई आर इंटू डी आर हो गया। अब तो ये जो है r इंटू आर, आर क्यूब हो गया, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा r रेस्ट पावर 4/4। तो जब इसको सॉल्व किया तो फॉर्मूला मिला, जो फॉर्मूला मिला वो है 2 पाई डी रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 16। सो और आई जेड जेड जो आएगा वो आएगा पाई डी 4 रेस्ट टू पावर डिवाइडेड बाय पाई डी रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाय 32। अब आई एक्स एक्स इज इक्वल टू होता है आई जेड जेड प्लस आई वाई वाई। अच्छा, दोनों सिमिलर हैं इसलिए मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स क्या हो गया, तो ये जो 2 है ये नीचे चला गया, तो ये आ गया पाई डी रेस्ट पावर 4/64। और आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू पाई डी रेस्ट पावर 4/64। और आई जेड जेड जो होगा वो होगा पाई डी रेस्ट पावर 4/32। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सेम रूल्स है, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आ जाएंगे, डी रेस्ट मतलब एक कैपिटल डी आ जाएगा और एक स्मॉल डी आ जाएगा। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी के बेसिस पे जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा पाई/64 डी रेस्ट मतलब कैपिटल डी रेस्ट पावर 4 माइनस स्मॉल डी रेस्ट पावर 4। ठीक है। उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए देखिए पूरा का पूरा डायग्राम समझना पड़ेगा। तो हमारा एक ट्रायंगल है जिसका है ए बी और सी। इस ए बी सी का जो विड्थ है वो बी है और जो हाइट है वो एच है। अब मैंने इसमें एक एलिमेंट्री क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया जिसका डी ए है और जिसका विड्थ बी दिया हुआ है और उसका थिकनेस डी वाई दिया हुआ है, जो ऊपर मतलब ऊपर से वाई डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। क्लियर है। तो आई ए बी, मैंने क्या बोला, आई ए बी मतलब आई एक्स एक्स की बात कर रहा हूँ। ये क्या होगा, तो लिमिट होगा 0 से एस तक का एच माइनस वाई। ये देखिए एच में से अगर मैंने वाई माइनस कर दिया तो मेरा ये वाला सेक्शन आ गया इंटू डी ए। अब इंटीग्रेशन किया तो एच माइनस वाई स्क्वायर। अब डी ए मतलब एरिया क्या होगा, तो होगा बी इंटू डी वाई। ओके, नाउ बी बाय वाई। अब देखिए कहाँ आया, ये बी बाय वाई इज सिमिलर टू बी बाय एच के इक्वल होगा। तो इसमें से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो b की वैल्यू होगा b इंटू वाई बाय एच। अब ये वैल्यूज को मैं जब पुट करूंगा और इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा आई ए बी इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाय 12। ओके। अच्छा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर मैंने निकाला तो आई ए बी इज इक्वल टू आई जी जी प्लस ए इंटू बी एच क्यूब बाय ए इंटू बी ए इंटू एच बाय 3 का होल स्क्वायर। तो अब मैं ये जब सब कुछ को सॉल्व करूंगा तो मेरा जो सेंट्रॉइड आएगा आई जी जी इज इक्वल टू हो जाएगा बी एच क्यूब बाय 36। ये आपको याद रखना है कि आई ए बी होगा बी एच क्यूब बाय 12 और आई जी जी जो होगा वो होगा बी एच क्यूब बाय 36। ठीक। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा, तो सेमी सर्कुलर सेक्शन के लिए वैल्यूज देके रखा हुआ, ये देखिए आई एक्स एक्स, ये आई एक्स एक्स जो होगा वो होगा पाई आर रेस्ट पावर 4 बाय 8। आई जी जी जो होगा वो होगा 0.11 आर रेस्ट पावर 4 और आई वाई वाई होगा पाई आर रेस्ट पावर 4 बाय 8। ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं जो आपको सॉल्व करना होता है। जनरली हमने ये मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया था कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टी सेक्शन ऑफ साइज तो 200 इंटू 200 इंटू 20, मतलब 200 हाइट है, 200 विड्थ है और 220 जो है वो उसका थिकनेस है। तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसका नाम हुआ एरिया A1 और एरिया A2। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सेंट्रॉइड
मतलब y एक्सिस निकाला है, तो y एक्सिस क्या होगा, the distance of centroid from point O is y dash is equal to summation of ay divided by summation of a. अच्छा, summation of ay क्या होगा, तो a1 y1 plus a2 y2 और summation of a होगा a1 plus a2. अब सम एरिया a1 कितना होगा, तो a1 आपका होगा, ये देखिए 200 इंटू ये वाला डिस्टेंस, सॉरी a1 की बात कर रहे हैं ना, 20 इंटू 180, 180 इंटू 20. अच्छा, y1 क्या होगा, तो y1 ये वाला पार्ट है, तो ये 180 है, ये 180 का आधा कितना हुआ, तो 90 हुआ, ठीक, प्लस a2 की वैल्यू क्या हुई, तो a2 मतलब ये वाला पार्ट हुआ, मतलब 200 इंटू 20 इंटू, अब देखिए 220 इंटू 20, अब इसका y2 निकालना है, मतलब y रेफरेंस में निकालना है, तो ये टोटल कितना हुआ, सॉरी ये टोटल नहीं, ये टोटल, ये वाला पार्ट अपन देख रहे हैं ना, तो इसका थिकनेस कितना हुआ, तो ये 20 हुआ, तो 20 का हाफ कितना होता है 10, और ये 10 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बाद बचा हुआ है, तो वो 180 प्लस 10 इज इक्वल टू 190 आ गया, ठीक है, और a1 और a2 की वैल्यू डाल दीजिए, तो y डैश आ गया 142.63 mm. अब आई एक्स एक्स निकालिए, तो आई एक्स एक्स कैसे निकलेगा, तो आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू निकालना है, तो आपको पता है कि ट्रायंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का जो होता है वो बी डी क्यूब बाय 12 होता है, तो आपने देखा बी डी क्यूब बाय 12 से इसने सॉल्व किया और आई एक्स एक्स की वैल्यू निकाला, इसी तरीके से आई वाई वाई की वैल्यू निकालेगा, और बस ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया कि आई एक्स एक्स कितना होगा और आई वाई वाई कितना होगा, वो हमें निकालिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जो एल एक्सिस के लिए दिया हुआ है, आप एक बार इसको खुद से बनाइए, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।